Hello students, today in this audio video we will discuss with you the national income through income method. There is too much power cut in village area, but still with charging of mobile in between and laptop is almost closed all the time because of regular power cut. Uh, Although whatever infrastructure available to us and whatever knowledge we have, we try to put up those knowledge on website, on YouTube or other sites so that it should be useful to someone else. So now come to the point. Uh, Income method of national income. CBSE class 12 economics, macroeconomics chapter national income and its aggregate. This method means national income method of measuring national income is also known as factor cost method. मतलब ये जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ये जो इनकम मेथड है, इसमें एक्चुअली में फैक्टर कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं। जितना फैक्टर पेमेंट्स होता है उसको हम लोग ले रहे हैं। दिस मेथड अप्रोचेज नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। हाँ, ये जो जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो डिफरेंट इनकम्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को जाता है उनके मेहनताना के रूप में, दैट इज टेकन हियर अकॉर्डिंग टू। हाँ, according to this method, the income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up, that is, incomes that accrue to all factors of production by way of rents, wages, interest, and profits are all added together, but income received in the form of transfer payments are ignored. मतलब ये जो इनकम मेथड है नेशनल इनकम फाइंड आउट करने का, उसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे को अपनी सेवाएं देते हैं, एज एन एम्प्लॉई, एज अ प्रॉपर्टी ओनर, एज अ कैपिटल ओनर, एज एन एंटरप्रेनर, तो उनको इनकम के रूप में रेंट, कोई रेंट कमाते, कोई इंटरेस्ट कमाते, कोई प्रॉफिट कमाते हैं, कोई सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कमाते हैं। तो इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो इस तरह से हम लोग देश का इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं। बट अगर उसमें कोई ट्रांसफ़र इनकम मिला हुआ है तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम आर पेड without any economic agreement. It is just paid because of social agreement, because of some moral or ethical responsibility of parents or society or government or any trading or non-trading organizations to someone else, not because of economic but because of some other responsibility. That payment is taken as transfer payment. The data pertaining to income are obtained from different sources, for instance from income tax returns. हाँ, अब ये जो इनकम मेथड से जो देश का नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो डेटा है, जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से निकालेंगे? तो बोला ये वो इनकम टैक्स जो लोग फाइल करते हैं ना, उसमें से मिलता है। और जो रिपोर्ट्स छपते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन सब में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सबके यहाँ जो अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट लोग मेंटेन करके रखते हैं गवर्नमेंट के पास, अगर उसको सबमिट किए हैं। एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम, और छोटे कमाने वाले लोगों के एस्टिमेट, अनुमान से इनकम बैठा दिया जाता है, जिसको मिक्स्ड इनकम ग्रुप भी कहा जाता है। मिक्स्ड इनकम उसको कहा जाता है, व्हाट अ मिक्स्ड इनकम ग्रुप। देखो, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में व्हाट हैपेंस, देयर इज अ मैनेजमेंट, देयर आर ओनर्स, बट अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर the works is divided into different departments. It's a purchase department, production department, sales department, marketing department, finance department, etc. So all departments are working, and so factors of payments are made paid to some each and every factor separately.
like employees are different, property owners are different, money lenders are different, entrepreneurs are different, so each are getting things separately. The property owners will get in rent only. The capital owners who are providing capital as a debt, as a loan, will get interest only. The persons who are serving as an employee will get salary only, and entrepreneur will get profit only, dividend only. So I would like to remind once again that profit has three parts: undistributed profit, corporate tax, and dividend. So, mixed income. I was talking about the mixed income. Mixed income means if it is a small firm like a pawn shop or a car or a small carpenter or cobblers or potter, they are doing all the works of an employee, of a property owner, of a capital owner, of entrepreneur. They are doing all the duties themselves, himself or herself. They are not hiring others' property. They are using their own property. They don't borrow from others. They lend themselves. They don't take other staff's help. They do their business work through the occupation work, through their own service as an employee. So it means, and as an entrepreneur, he or she is the owner of the that small organization. So all the incomes, rent, interest, profit, salary, etc., if goes to same person, that income group is called mixed income group. This is also taken in national income. The GNP can be treated as the sum of factor incomes earned as a result of undertaking economic activity on the part of resources owner and reflected in the production of the total output of goods and services during any given time period. GNP, full form gross national product, can be treated as the sum of factor incomes. सारे factor incomes का total, rent, interest, profit, salary, commission, royalty, etc., earned as a result of undertaking economic activity, कोई ना कोई economic activity करने के लिए on the part of resource owners, वो कोई सर्विस का ऑनर है, कोई प्रॉपर्टी का ऑनर है, कोई कैपिटल का ऑनर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो वो सबको हम लोग जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज्ड अप होता है वो जीएनपी में लेते हैं. बट जीएनपी में एक और बात होती है कि इसमें सिर्फ अपने इंडियन नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू या इनकम ऑफ सिर्फ अपने इंडियन नेशनल्स का लेते हैं, तभी वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा. और इसमें जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ से पैसा कमा के ले गए वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा. द जीएनपी अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. और अगर आप इनकम मेथड से सवाल बनाएंगे, अभी आपने वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, तो वहाँ पे जीडीपीएमपी कैसे निकालते थे, वहाँ पे जीडीपीएमपी हम लोग निकालते थे. जीडीपीएमपी इन वैल्यू एडेड मेथड इजकल टू, दैट इज जीडीपीएमपी इजकल टू वैल्यू एडेड. उसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये था. और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला पढ़े थे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक. तो यहाँ पे देखिए, और फिर वहाँ पे जीएनपी कैसे निकालते थे, वो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी करते थे, अगर उसमें से एनएफआईए का काम करते, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो तुरंत जीएनपी एमपी आ जाता था. और अगर जीएनपी एफसी करना है, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस करना है, तो उसमें से आपको वो टैक्सेस और सब्सिडीज़ का काम माइनस कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना, टैक्सेस माइनस सब्सिडी प्लस, या नेट इंडिया टैक्सेस माइनस, तो आ जाएगा आपका जीएनपी वैल्यूडेड मेथड में. बट यहाँ इनकम मेथड में देखिए, सी हेयर इन इनकम मेथड, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो एक्चुअली रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हो गया एनडीपी एमपी. ध्यान दीजिएगा, जब रेंट वेजेज इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम को ही रखते हैं, तो हो जाएगा एक तरह से एनडीपी एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी, एनडीपी एफसी हो जाएगा. रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जब रहेगा इतना सारा, तो क्या हो जाएगा एनडीपी
NFFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और फिर उसमें अगर जब हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा NNPFC, जो कि नेशनल इनकम होगा। लेकिन इनकम मेथड से कुछ प्रिकॉशंस है क्या? वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम by income method, the following precautions should be taken. What are the precautions? Transfer incomes or transfer payments like scholarships, gifts, donations, charity, old age pensions, unemployment allowances etc. should be ignored. देखिए बता रहा कितना अच्छा कि ट्रांसफर इनकम जो भी हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, गिफ्ट्स हो, डोनेशंस हो, चैरिटी हो, ओल्ड एज पेंशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा हो, इस सबको इग्नोर करना चाहिए, ये नहीं लेंगे बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिक फैक्टर इनकम। All unpaid services like services of housewife, teacher, teaching her his child should be ignored। हाँ, मतलब कि हम लोग अपने ही घर के लोगों को अगर सेवा देते या फिर ऐसा सर्विसेज देते जिसके हम लोग को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, जैसे अगर किसी टेम्पल या किसी धर्मशाला में हम लोग जाके 2-4 घंटा साफ सफाई का काम करते हैं, तो वो जो हम लोग साफ सफाई का काम वहाँ पर किए बिना किसी पैसा लिए पॉइंट से, सेवा भाव से, तो वो उसको उसको देश के नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, इनकम मेथड में इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। वहीं अगर कोई स्टाफ टेम्पल या किसी धर्मशाला में काम करता है और बदले में उसको सैलरी का एग्रीमेंट हुआ है तो फिर वो ऐड होगा। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स लाइक कार, हाउस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर्ड। ये हम लोगों ने वैल्यूएटेड मेथड में भी देखा था। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट ऐड एनीथिंग। अगर जो फाइनेंशियल बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ये सब जब सेल होते हैं तो किसी को इनकम होता है तो वो सब भी देश के नेशनल इनकम में नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड। और गवर्नमेंट को जो टैक्सेस से इनकम होता है वो उसको भी नहीं लेंगे, बिकॉज ये सिर्फ ट्रांसफर इनकम है। हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो एक ऐच्छिक पेमेंट है देश के लोगों के द्वारा अपने देश को, समाज को ढंग से चलाने के लिए। Undistributed profits of companies, income from government property and profits from public enterprise such as water supply should be included। आप देखिए बता रहा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब जो प्रॉफिट के 3 पार्ट है। एक पार्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक पार्ट होता है डिविडेंड और एक पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं, तो उसको भी। और इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी से या किसी प्रॉफिट्स आपको जो पब्लिक इंटरप्राइज से हो रहा है जैसे वाटर सप्लाई कंपनी, तो ये सब भी देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम प्रोडक्शन करके खुद के लिए, खुद फैक्ट्री में ही यूज़ कर लिए या अपने घर में लेकर चले गए या अपने घर में ही खेती करके प्रोडक्शन किए, बाज़ार में नहीं बेचे, तो वो सब भी देश के नेशनल इनकम में काउंट होगा। उसी तरह से अगर अपना बिल्डिंग को अपने बिजनेस के में यूज़ करके भाड़ा बचा ले तो वो इम्प्यूटेड रेंट भी देश के नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। In India, the National Income Committee of the Central Statistical Organization (CSO) uses the income method for adding up the income arising from trade, transport, professional and liberal arts, public administration and domestic services। मतलब कि ये जो CSO है वो इनकम मेथड से इनकम फाइंड आउट करने के लिए जो डेटा आता है ट्रेड से, ट्रांसपोर्ट से, प्रोफेशनल कोई काम दे करके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर्स एक्सेट्रा हैं, लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डोमेस्टिक, इस सब से वो पता कर लेते कि कितना किसका इनकम हुआ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, देखते हैं क्या है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। GDP at factor cost is the sum of net value added by all producers within the country। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया उसका कॉस्ट प्राइस। इट डज नॉट इंक्लूड टैक्स एंड सब्सिडीज सिंस इट ओनली इंक्लूड फैक्टर कॉस्ट। Since the net value added gets distributed as income to the owners of factors of production, GDP is the
सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड फिक्स कैपिटल कंजम्पशन। हाँ, इसमें डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी सब होगा, प्लस मिक्स्ड इनकम और डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन टैक्स और सब्सिडीज में नहीं रहेंगे। द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डिप्रिसिएशन। नेट वैल्यू एडेड का मतलब होता है एक्चुअली में नेट एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी में डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो जीडीपी एफसी आ जाएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसको वेजेस एंड सैलरी कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ माइनस डिप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? सैलरी मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन। तो अगर जहाँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है तो वो GVAFC है। तो उसमें से ऑपरेटिंग सरप्लस यानी रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना है तो GVAFC में से हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और डिप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी शामिल होता है किसमें? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। Conceptually, GDP at factor cost and GDP at market price must be identical. This is because the factor cost payments to factors of products producing goods must equal to the final value of goods and services at market prices. हाँ, क्या बता रहा कि सिद्धांततः फैक्टर कॉस्ट GDP at FC और GDP MP सेम होना चाहिए, क्योंकि जो बनाने का खर्चा है उसमें तो ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड, वही मार्केट प्राइस होना चाहिए। However, the market value of the goods and services is different from the फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट एडिशनल उस पर टैक्सेस इम्पोज करती है और किसी किसी ऑर्गेनाइजेशंस को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसीलिए मार्केट प्राइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। लिख रहा है इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस आर इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड आर एक्सक्लूडेड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई भी चीज़ मार्केट प्राइस में, इसका मतलब उसमें टैक्स जोड़ा गया और सब्सिडी घटा दिया गया, तब मार्केट प्राइस निकाला गया। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अराइव एट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर जीडीपी एमपी हमारे पास दिया हुआ है तो उल्टा हम काम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्सिडीज विल बी एडेड अप। ओके, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना। और सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया जीडीपी एमपी, तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो, सब्सिडी प्लस करो या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, यू विल गेट जीडीपी एफसी। एक्सप्लेन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP. NDP is the value of net output of the economy during the year. Some of the country's capital equipment wears out or becomes obsolete each year during the production process. The value of this capital consumption is in some percentage of gross investment which is deducted from GDP. Thus, net domestic product NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रिसिएशन। हाँ, मतलब बोला कि ग्रॉस से जब नेट जाएंगे तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी एक तरह का सर्विसेज है, जो एसेट्स का सर्विसेज माना जाता है साल भर का। एक तरह से कह सकते हैं कि एसेट्स को जो यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, उसका एक तरह से फैक्टर पेमेंट है डिप्रिसिएशन। एक्सप्लेन नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। हाँ, देखो, जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपने इकोनॉमी साल भर के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उसको जीडीपी कहते हैं। बट अब वो जीडीपी का कैलकुलेशंस, एक होता है बेस ईयर का प्राइस और एक होता है करंट ईयर का प्राइस। तो अगर मान लीजिए करंट ईयर का आउटपुट, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके आउटपुट को अगर उसी साल के करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते तो जो डोमेस्टिक प्राइस निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है, वो होता है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर इस साल के करंट ईयर के प्रोडक्शन को कोई एक बेस ईयर, जिसको हम लोग पीछे वाले साल को किसी को बेस ईयर मान चुके हैं, उस साल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मार्केट वैल्यू निकल के आता है उसको रियल जीडीपी कहते हैं। जैसे अब सपोज कीजिए अभी 2011 के फाइनेंशियल ईयर के इनकम को अगर बेस ईयर मान ले और 2019-20 के आउटपुट जो हुए हैं, प्रोडक्शन हुए हैं, तो उसको अगर 2019-20 के आउटपुट को, देश में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट को अगर बेस ईयर 2011-12 के प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो जो मार्केट जीडीपी निकला वो हो गया रियल जीडीपी। लेकिन अगर 2019-20 के ही आउटपुट
और उसी साल के अगर मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2019-20 तो वो आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मेजरमेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, और रियल जीडीपी करेक्ट मेजर है, सही देश की आर्थिक स्थिति का प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखता है। लिखा है नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ मनी इन करेंट मार्केट प्राइसेस। देखिए दे रहा। In comparing one year with another, we are faced with the problem that the rupee is not a stable measure of purchasing power. या जब हम एक साल से दूसरे साल के फिगर को कंपेयर करते हैं तो रुपी से कंपेयर करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि आज से 15 साल पहले जो रुपी का वैल्यू था और अभी जो रुपी का वैल्यू है वो कम और ज़्यादा हुए हैं। रुपी अपना वैल्यू लूज़ की है। पहले जो 1 रुपये में चीज़ मिलता था वो 5 रुपये में मिलता है। जीडीपी में राइज अ ग्रेट डील इन अ ईयर। जीडीपी बहुत ज़्यादा दिख जाएगा, नॉट बिकॉज द इकोनॉमी हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली। हो सकता है कि देश में आउटपुट नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी जीडीपी ज़्यादा दिख सकता है, क्योंकि अगर चीज़ों का दाम बढ़ते रहता है तो कम आउटपुट को भी ज़्यादा मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे इन्फ्लेशन के कारण, तो वो जो जीडीपी आएगा वो बड़ा ही भयानक होगा। दिखेगा ज़्यादा इनकम पेपर पर, बट एक्चुअली में आउटपुट कम रहेगा। ऑन द कंट्रारी, जीडीपी में इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइसेस इन ईयर, बट एक्चुअली इट मे बी लेस और कंपेयर टू द लास्ट ईयर। मतलब हो सकता है इस साल देश में प्रोडक्शन बढ़ गया था लेकिन चीज़ें सस्ती हो गई थी, फिर भी अगर इस साल का जीडीपी पिछले साल से ज़्यादा आ रहा तो ये ठीक है। इन बोथ 5 केसेस जीडीपी डज नॉट शो द रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी जीडीपी से देश के असली अर्थव्यवस्था का पता नहीं चलता है। To rectify the underestimation and overestimation of GDP, we need a measure that adjusts for rising and falling prices। हाँ, बोला क्या कि ये जो जीडीपी का अंडर या ओवर एस्टिमेशन होता है, अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन होता है, इसको ठीक करने के लिए हम लोग को समय के साथ प्राइसेस में जो राइज और फॉल होता है उसको एडजस्ट करते रहना पड़ता है। दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस विच इज़ कॉल्ड द रियल जीडीपी। इसीलिए किसी एक साल के प्राइस को बेस ईयर मान के, जैसे भी मैं बताया था ना, 11-12 ईयर को बेस ईयर अगर मान ले और उसके बाद अभी तक के सारे सालों को अगर हम लोग को जीडीपी फाइंड आउट करना है तो हर साल के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल जीडीपी, और जिस साल का आउटपुट रहेगा अगर उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉमिनल जीडीपी। लिख रहा टू फाइंड आउट द रियल जीडीपी अ बेस ईयर इज चोजन व्हेन द जनरल प्राइस लेवल इज नॉर्मल। देखिए बता रहा कि एक बेस ईयर का चयन करेंगे, इट इज़ नाइदर टू हाई नॉट टू लो, और वो बेस ईयर का प्राइस ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। यूजुअली प्राइसेस आर सेट टू 100 इन द बेस ईयर। बेस ईयर को अगर 100 मान ले, 1 मान ले, तो इस तरह से चला जाता है। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर is an index of price changes of goods and services included in GDP. It is a price index which is calculated by dividing the nominal GDP in a given year by the real GDP for the same year and multiplying it by 100। बोला क्या जीडीपी डिफ्लेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसमें डिवाइड करते हैं नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 बाई रियल जीडीपी। Explain gross national product (GNP). GNP is the total measure of the flow of goods and services at market value resulting from current production during a year in a country, including net income from abroad। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो टोटल मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम करेंट प्रोडक्शन। इस साल जो प्रोडक्शन हुआ अपने इंडियन नेशनल्स के द्वारा वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। जीएनपी इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जीएनपी में 4 तरह के गुड्स एंड सर्विस: कंज्यूमर गुड्स, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री मीन स्टॉक, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। और चौथा नेट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इन दोनों का डिफरेंस। इन दिस कंसेप्ट ऑफ जीएनपी, ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, दीज आर सर्टेन फैक्टर्स, देर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये सब कैलकुलेशन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट, जीएनपी इज द मेजर ऑफ मनी। जीएनपी पैसे में हिसाब रखा जाता है इन विच ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर
आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एट करेंट प्राइसेस एंड देन एडेड टुगेदर। मतलब ये कहेंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंडियन नेशनल्स के द्वारा उस इकोनॉमी के लिए जो प्रोडक्शंस किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज या बेच करके कमाया जाता है, चाहे उस सर्विसेज को बेचे या प्रोडक्ट को बेच करके प्रॉफिट कमाए, वो जीएनपी में इंक्लूड होता है। But in this manner, due to an increase or decrease in the prices, the GNP shows a rise or decline, which may not be real। बोल रहा क्या, लेकिन ये जो हर साल प्राइसेस बढ़ते या घटते रहते उसके कारण हो सकता है जीएवी या तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो कि वास्तविक स्थिति नहीं है। टू गार्ड अगेंस्ट एरिंग, इस तरह की गलतियाँ नहीं हो, टू गार्ड अगेंस्ट एरिंग ऑन दिस अकाउंट अ पार्टिकुलर ईयर, किसी एक साल को, जैसे मैं बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि क्या कहते हैं, कहाँ चला गया, बेस ईयर मान लेते हैं, तो वो हो गया हमारा बेस ईयर हो जाता है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपको सवाल समझा रहे हैं और कुछ हम लोग का हाथ इधर उधर गलत से दब जाता है, इट बिकम्स, ये सब तो समझा दिया। ये सब तो समझा दिया, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर भी समझा दिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझा दिया। ये देख लेते क्या है, ठीक है, जो समझे इसको समझिए, इसको छोड़ता हूँ और बाकी बाद में समझाता हूँ। थैंक यू।